D05 Bar Company. Bar Company is a stock exchange listed company that is concerned by its current level of debt finance. It plans to make a right issue and to use the funds raised to pay off some of its debt. The right issue will be 20% discount to its current ex-dividend share price of 7.5 per share, and Bar Company plans to raise 90 million. Bar Company believes that paying off some of its debt will not affect its price upon earnings ratio, PE ratio, which is expected to remain constant. हमें निकालना है calculate the theoretical X-right price share of Bar Company following the rights issue. फिर निकालना है calculate and discuss whether using the cash raised by the rights issue to buy back bonds is likely to be financially acceptable to shareholders of Bar Company. Commenting in your answer on belief that the current price upon earnings ratio will remain constant. लास्ट में एक थ्योरी का समय वो अपन बाद में करते हैं, लेकिन पहले इतना कर लेते हैं. Calculate the theoretical X-right price per share of Bar Company following the rights issue. Okay. चलो खोल लेता हूँ मैं. ये आ गया 305 Bar Company. Theoretical X-right price निकालना. The right issue will be at 20% discount of its current dividend share price of 7.5. ठीक है. Add a 20% discount यानी कि plans to raise per share, and Bar Company plans to raise 90 million. Okay. राइट इशू का प्राइस होगा 6. We have to raise 90 million. नंबर ऑफ शेयर्स हम इतने रेज करेंगे. अगर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 15,000 होंगे और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे 60, बिकॉज पहले पहले मेरे पास 60 थे जिसका हमने वैल्यू 1 थी. यहाँ पे हेलो. हाँ बोलना. नहीं, यहाँ पे 7.5 था एक डिविडेंड प्राइस और ये एक डिविडेंड शेयर प्राइस और ये 6. So this into this, and on this upon this, I'll just add up both of them and add this also. So TERP, theoretical X-right price, is equal to
7.2, तो मुझे आता है 7.2 theoretical exercise price per share following the rights issue। मेरा चेहरा, लेट्स गो। देखते हैं कि सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 305 होगा मैंने, एंड आई एम करंटली 318। बोल दो 500, ये आ जाएगा 500 पे, और ऊपर ऊपर 305 का theoretical exercise price इज 7.2। नाइस, 7.2 आ गया। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। राइट इशू इज ऑन 1 और 144 बेसिस पे। तो सबसे पहले जरा ये समझ लेता हूँ मैं, 144 बेसिस पे हुआ है। अच्छा, इन्होंने भी ऐसे ही ढूंढा कि 15 मिलियन शेयर से 60 मिलियन। ठीक है, तो ये टी अभी मेरा आ गया 7.2। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज currently next step should be calculate and discuss whether using the cash raised by rights issue to buy back bonds is likely to be financially acceptable to shareholders of bar company. Commenting in your answer on the belief that current price upon earning ratio will remain constant. Okay. 8% bonds are currently trading at 1.25 per 100 bond, and bondholders have agreed that they will allow bar company to buy back the bonds at their market value. Bar company pays tax at 30%. वो ठीक है। अम, जो इंटरेस्ट हम 10 का पे कर रहे हैं, हम उसी के ऊपर पे कर रहे हैं, 1.25 के ऊपर का। सॉरी, 125 अपॉन 0.8 का 10। जो ये 10 तो वही है इंटरेस्ट, बट डज इट मैटर? देखो, हमने कैश रेस कितना किया है? 90,000। 90,000 में कैश रेस किया है। तो हमने कैश रेस किया था 90,000 का। हमारे पास शेयर जो अभी ट्रेड ऑफ हो रहे हैं मार्केट वैल्यू में 1.112.5 पे, तो डिवाइड दिस एंड दिस बाय, कहते हैं 800। तो हम 800 कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं, राइट? वी कैन बाय 800 of the bonds. So if we buy back 800 bonds, अच्छा 800 जो मैं बोल रहा हूँ मतलब एक्चुअली इट इज मिलियन है ना। तो देखो ये कैसा है, ये 125,000 है। तो फिलहाल इस 125,000 में से मैं 800 इंटू 100, मतलब मैं 80,000 बॉन्ड्स वापस ले सकता हूँ। तो मैं जो पहले इंटरेस्ट पे कर रहा था, वो मैं कर रहा था इसके ऊपर का 8%, एंड इसके ऊपर का मैं 8% देगा, तो मेरे को 6,400 का मुझे इतना मेरा बचेगा ना, बिकॉज इतना मैं बाय बैक करूंगा। बाय बैक। ये अभी आ रही है वॉइस और हाँ, वीडियो अब आ बराबर? रही है, आ रही है, आ रही है। वॉइस वीडियो बराबर आ रहा है। बैटरी डाउन हो गई थी। अरे कोई ना, कोई ना। इसको ऐसा रख देता हूँ मैं। नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे जो न्यू न्यू बॉन्ड्स जो मेरे बन जाएंगे, वो न्यू बॉन्ड्स इंटरेस्ट बनेगा। वो ऐसा ऐसा कुछ बनेगा कि देखो, अब यहाँ से इतना कटा, तो मुझे ये इंटरेस्ट यहाँ पे शोकेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 3.6। ना मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, राइट, कि कैसा होगा। सो 49 में से 3.6 जब जाएगा, तो बचेगा जो भी टैक्स 30 पे पे हो रहा है,
0.3 31.78 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है। सो तो इट विल बी फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है। सो इट लुक्स अट्रैक्टिव, द P&L looks attractive, प्लस अपने लायबिलिटीज एक तरीके से कम हो रही है। तो सही तो लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट भी यहाँ से बच रहा है एफईसी पे करने में। नाम से would be based on that। चेक कर लेते हैं, ये देखो इंटरेस्ट 6 8% पर ईयर सेव रिडीमिंग 6.4 परफेक्ट। ये सब किया हुआ है, ये सब तो सही आया। अच्छा ये इतना इतना नहीं किया था, एक मिनट। हाँ रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर है, टैक्स चार्ज बराबर है, रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ ये भी बराबर है। रिवाइज अर्निंग्स पर शेयर नहीं है, मैं रेशियो नहीं निकाल रहा हूँ, वो गलती हो गई मेरे से। एंड देन दे हैव एक्सप्लेन, ये सब तो मैंने ये सिर्फ रेशियोज ही निकाले हैं। तो ये देख लेते फाइनेंशियली द फाइनेंशियल acceptability to shareholders of the proposal to buy back loan notes can be assessed by calculating whether shareholder wealth is increased or decreased as a result. Okay. The loan notes are being bought back by bar company at the market value of 112.5 per loan note rather than the nominal value of 100 per loan note. The nominal value of loan notes redeemed will therefore be less than 90 spent redeeming them. एक minute. The nominal value of loan notes redeemed will therefore be less than 90 million spent on redeeming them. Why will that happen? पर हम तो इस पे बाय कर रहे हैं ना। तो तो तभी वो तो सही है, मैंने तो कैलकुलेट किया है, बट ये 800 दिया मेरे को, तो मैं बाय बैक कितना किया, मैंने मल्टीप्लाई का 100 किया। यहाँ एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई 100 किया था तो फिगर इट आउट कि मेरा सेव कितना हो रहा है, राइट। हम बचा मैं बचा कितना रहा हूँ, ठीक है। हाँ ओके फाइन, 80 मिलियन सही है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। लेकिन अब हाँ रेशियोज निकालना है टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, राइट। रेशियोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशियोज निकालने के लिए तो ईपीएस निकाल सकता हूँ मैं पर शेयर। तो अर्निंग्स जो है मेरे, अर्निंग्स अपॉन एच इज इक्वल टू मी अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो मेरा ईपीएस है करंट एंड न्यू ऐसा करके मैं निकालता हूँ। ईपीएस ईपीएस ऑब्वियसली अर्निंग्स यहाँ पे मेरी नहीं हुई थी, डिवाइड बाय बस एक शेयर कितने थे 60 ना, 60 नॉमिनल थे। तो 5.29 ऊपर मेरी कितनी आ रही थी 27 डिवाइड बाय 60। तो ऑब्वियसली देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 0.0729। because of this increase the EPS might look more attractive। और कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं यार प्रूफ करने के लिए, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो में निकाल सकता हूँ। सो डेट अपॉन इक्विटी इफ आई कैन मेक दैट रेशियो हैपन, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो जो अब नया न्यू सॉरी करंट एंड न्यू, करंट की स्पेलिंग गलत है लेकिन अभी के लिए इग्नोर करना। तो 80,000 यहाँ से निकल गया तो 45 डिवाइड बाय 60। एंड यहाँ पे इक्विटी ना, इक्विटी में सब आता है मुझे लगता है, इक्विटी में तो रिजर्व भी आते हैं ना। तो 140
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे 125 अपॉन 140 चल जाता है ये दोनों। तो देयर एंड मैं गलत लिख दिया। तो देयर अ डिक्रीज ऑफ जो भी परसेंटेज का डिक्रीज है वो, विच इज गुड। डेट अपॉन इक्विटी में अगर डिक्रीज है विच इज अ गुड साइन। मैं इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में करंट न्यू राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट, एक्चुअली इंटरेस्ट जितना बढ़ता है उतना बेटर होता है, ऐसा बोलता है ना शायद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज कितना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 49 डिवाइड बाय 10। यहाँ पे भी 49 ही रह रहा है लेकिन डिवाइड बाय, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ गया विच इज गुड। हम इतना इंटरेस्ट दे सकते हैं अभी और ऐसा, लाइक इंडिकेट्स दैट। फिलहाल के लिए इतने रेशियोज के कैलकुलेट देखते हैं। करंट प्राइस अपॉन अर्निंग्स रेशियो ये भी निकाल सकता था, ठीक है। अर्निंग्स 0.45 की हो रही है, ये कहाँ पे दिया है? अच्छा ईपीएस, हाँ ईपीएस ऑन एनपीएस 7.55 एनपीएस, ये कहाँ पे मिला था? और इसका ऊपर मिला है 7.5 एनपीएस। मार्केट वैल्यू क्या? हम्म 1.5 मार्केट वैल्यू थी यहीं की, ठीक है तो वो बढ़ जाता है। द रिवाइज्ड अर्निंग्स पर शेयर can be used to calculate revised share price if the price of one equity is assumed to be constant. Revised share price is equal to, share का फॉर्मूला क्या था एक्चुअली? पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस एमपीएस मार्केट वैल्यू अपॉन ईपीएस, ऐसा था। क्या क्या क्या? 16.7। Wait, इनके से इन्होंने करंट निकाला है कि रिवाइज्ड, हाँ तो रिवाइज और करंट ईपीएस निकाला है इन्होंने। ये तो मेरे को 45 आया। ये मैंने गलती यहाँ पे भी कर दी ना। ये मेरे को ये लगता है ओल्ड वाला था और ये न्यू वाला था, राइट। ये करंट वाला था और ये न्यू वाला था। न्यू वाला ज़्यादा आया ना मेरा 31.75। ओ नहीं 75 लूंगा, राइट यहाँ पे मैं 75 लूंगा बिकॉज मैंने यहाँ पे इक्विटी भी ज़्यादा ले ली थी, राइट। डेट ऑन इक्विटी, अभी यहाँ पे भी इक्विटी लेते टाइम फिर मैं 15 ज़्यादा लूंगा, मतलब 155 लूंगा न्यू वाले में, है ना। हम्म,
तूने पी रेशियो निकाला, बेसिकली ने पी रेशियो निकाला सेइंग एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो एमपीएस व्हाट दे अज्यूम टू बी, एमपीएस ने अज्यूम किया, उन्होंने वही ओल्ड वाला लिया 75, उन्होंने वही ओल्ड वाला लिया रहेगा 75। तो 7.5 डिवाइड बाय 0.45 इज द करंट ईपीएस, एंड दे गॉट दिस कि मेरे को पी रेशियो इतने टाइम्स का आता है। द नेक्स्ट थिंग व्हाट दे अज्यूम्ड इसकी, यार देखो अगर ये सब तो इन्हें निकालना नहीं फिलहाल के लिए, बाद में रखा है इन्होंने। इसमें निकाल कि अगर एमपीएस निकालना है, मार्केट प्राइस पर शेयर, नहीं शेयर यानी कि शेयर प्राइस बेसिकली, तो वी कैन डू पी रेशियो जो कांस्टेंट रह रहा है इनटू ईपीएस हमारा नया वाला विच इज दिस 7.062। तो हमारा 7.062 आता है इनको 0.008 आया, जिस ठीक है, मतलब आई थिंक इतना डिफरेंस स्टिल ओके, क्योंकि हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉइंट में ले रहे हैं, वो लोग उतना पॉइंट में नहीं ले रहे हैं। The share price is less than the theoretical X-right price. Okay, and so the effect of using the right issue funds to redeem the loan notes is to decrease the shareholder wealth. Is to less than the theoretical X-right price per share. And so the effect of using right issue funds to redeem the loan notes is to decrease the shareholder fund. So is to decrease the shareholder wealth. From a shareholder perspective, therefore, this use of the funds cannot be recommended. Right, because share price यहाँ पे change हो जाता है, ऊपर 7.2 था, यहाँ पे 7.08 है, right? However, this conclusion depends heavily on the assumption that the price upon earnings ratio remains constant, as this ratio was used to calculate the revised share price for the revised earning per share. In reality, the share price after redemption of the loan notes will be set by the capital market, and it is this capital, ये पढ़ना पड़ेगा पूरा। In reality, the share price after redemption of loan notes will be set by the capital market, and it is this market determined share price that will determine the price upon earnings ratio, rather than the price upon earnings ratio determining the share price. Okay, हम एमपीएस जो है, हमें नया एमपीएस दिया जाएगा क्योंकि हमने लोन नोट को किया है रिडीम। Since financial risk of bar company has decreased following the redemption of loan notes, the cost of equity is less is likely is likely to fall, and the share price is likely to rise, leading to higher price upon earnings ratio. अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिरा है तो ऑब्वियसली मेरा शेयर प्राइस बढ़ा होगा, इज व्हाट दे आर सेइंग, एंड दिस विल लीड टू, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बढ़ जाता है तो हमारा पी रेशियो भी बढ़ जाएगा। इफ द शेयर प्राइस इंक्रीजेस टू above the theoretical exercise price per share, corresponding to an increase in the price slash earnings ratio to more than 17 times, the shareholders will experience a capital gain, and so using cash raised by the rights issue to buy back loan notes will become financially acceptable from their perspective. Nice. तेरा एक्सेल दिखा है क्या? देख ले। तो भाई इतना तो कर भी लिया था। ऊपर ऊपर लेकर। तेरे को शायद नहीं समझा रहेगा वो टीईआरपी, या तेरे को आ गया वो करना कौन सा? टीईआरपी। क्या है जरा बता। अपन ने जो एफ आर में किया था वही है पूरा। नहीं एक बार बस बता ना, मुझे समझ जाएगा अगर। तेरे को खाली हाँ सही रिवर्स ना। कैलकुलेशन चार्ज करना है, तेरे को यहाँ पे उन्होंने शेयर कैपिटल तेरा कितना हो जाएगा तेरे को वो दिया है, तो तेरे को तेरे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे जब तू डिवाइड करेगा तो। बराबर बराबर है, हाँ। मिले। तेरे को तेरे नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, तेरे को तेरे प्रीवियस नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है, तेरे को तेरे को तेरा न्यू राइट्स
इशू प्राइस भी पता है, ओल्ड भी पता है। तू मल्टीप्लाई करेगा तेरे को ये मिल जाएगा। फिर तेरे को सिर्फ उसको ये करना है, क्या बोलते हैं, डिवाइड करना है टीईआरपी डिवाइड को। करना है। मेरे को लगा था तेरे को नहीं आएगा ये, क्योंकि जब मैंने टीईआरपी पढ़ा था ना, तो मेरे को भी, मैंने एफआर का बुक खोला था मैंने पढ़ने के लिए कि क्या ये अपन क्या करते थे। नहीं अभी याद आया मेरे को। तो एक काम करते, एक बार टीईआरपी ये सॉल्व कर डाल, फिर अपन चाहिए तो एक बार थियोरी ये खत्म करते हैं। तो कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फिर तेरे को मैं भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, या फिर तू देख ले आंसर पीछे से, ठीक है। नहीं तू पढ़ा भाई। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या था बाय द वे? थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। हाँ वो याद नहीं बट कैलकुलेशन याद है। ठीक। चल ठीक है वो वाला बता, थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। पहले अपन थियोरी पढ़ लेते हैं ये वाला। मैं वही तेरे बोल रहा को हूँ theory। बिहाइंड में पढ़ा दूंगा। अच्छा एक मिनट ना, पहले तो थ्योरी का क्वेश्चन क्या था। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी सच एज बार कंपनी and the financial objectives of a non-profit organization such as large charity। अभी देख, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है, so it must have taken funding from shareholders, and thus it will work in order to maximize shareholder wealth and to keep the shareholders happy, whereas charitable organizations will not have large number of shareholders, and thus they do not have the pressure of keeping the shareholders happy। ठीक है। बराबर। Whatever earnings have been earned by the stock exchange listed company will be reinvested in the company or given as a dividend to the shareholders or used और to the रिटेन betterment अर्निंग। of the company, whereas रिटेन non-profit अर्निंग। or हाँ retained earnings, ठीक है, हाँ added in the retained earnings, whereas in the not for profit organizations whatever income has been earned will be used in charity for the हम्म। betterment of the charitable organization। um, और क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड डज नॉट कम इनटू प्लेस, ये भी बोल सकते हैं थोड़ा और एक्सपांड वो करके। तो अपन ने इसमें बोल दिया ना, थोड़ा हाँ, तो अगले उसको पॉइंट में। अलग से निकाल के और एक्सपांड कर सकते हैं। um, ये आई थिंक तो एक ये भी होगा ना कि listed company have to publish their books of account but NPO do not लिस्टेड have legal नहीं, एक्चुअली obligation for that। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी करना पड़ता है। तू जब अभी लेकिन उस अक्टूबर सर में ने बोला जाएगा था ना ना। कि वो किसी किसी के लिए ही है, मतलब सबके लिए नहीं है। याद हम्म है? नहीं, मैं पता क्या बोल मतलब रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्सचेंज अथॉरिटी। लिस्टेड कंपनी है, तो मतलब पब्लिक फर्म रहेगी, so we'll have a lot of involvement of the government rather than not for profit organization। आई थिंक आई एम आउट ऑफ आइडियाज, मेरे को आंसर देखने का मन कर रहा है, तो तू लास्ट बता। वाला पॉइंट तो जमा नहीं है, क्योंकि उल्टा एनपीओ को गवर्नमेंट ज्यादा हेल्प करती है एज कम्पेयर टू पब्लिक लेकिन लिस्टेड लिस्टेड कंपनीज। कंपनी यार, पब्लिक लिस्टेड कंपनी लाइक अडानी हाँ टाटा, अभी देख ना, वो लोग को बिड करना पड़ता है, पब्लिक ही हाई है ना स्टॉक लगाना, फाइनली। प्राइस लैंड का करना पड़ता है, वो सब के लिए। हाँ लेकिन नहीं, एनपीओ पब्लिक को कंपनी जैसे है। भी, एनपीओ क्या बोल रहा है? अडानी पब्लिक कंपनी है। मैं थोड़ा स्टूपिड साउंड कर रहा है पूछते हुए, बट नहीं पब्लिक कंपनी है। शेयर होल्डिंग शायद होगी ना, नहीं रुकना ना, देख लेते हैं। पता नहीं, देखना देख पड़ेगा। क्योंकि उसके शेयर लिस्टेड लिस्टेड है कंपनी इसलिए है, बोल रहा हूँ। लिस्टेड कंपनी तो है, तो अब लिस्टेड कंपनी देख। है। A key financial objective of stock exchange listed company is to maximize the wealth of the shareholders. The objective is usually replaced by objective of maximizing the company's share price. Since maximizing the market value of the company represents maximum capital gain over a given period, the
need for dividends can be met by recognizing that share prices can be seen as the sum of the present values of future dividends. एक मिनट ना मैं ये 6 पैराग्राफ 7 पैराग्राफ का आंसर अपना एक ही पॉइंट में इन्होंने एक पैराग्राफ में डाल दिया है। नाइस। मैक्सिमाइजिंग द सीसीसी कंपनी शेयर सोच प्राइस और इज औकात के द बाहर। वही यार कोई चल ना। चल चल, Maximizing the company's कर share लेंगे price कर is लेंगे। the same as maximizing equity market value of the ये तूने company। बोला था। हाँ बोला था क्या मैंने? Since equity हम्म, market value, market capitalization is equal to number of issued shares multiplied by share price, maximizing equity market value can be achieved by maximizing net corporate cash income and the expected growth in that income while minimizing the corporate cost of capital. Listed companies therefore have maximizing net cash income as key financial objective. Maximizing net cash income, ठीक है, मतलब कैश फ्लोज भी कंसिडर करने हैं। Not-for-profit organizations seek to provide service to the public, and this requires cash income. Maximizing net cash income is therefore a key financial objective of not-for-profit organizations as well as listed companies. A large charity seeks to raise funds as possible in order to achieve the charitable objectives which are non-financial in nature. ठीक है, तो कैश दोनों के लिए जरूरी है। Both ओके। listed companies and not-for-profit organizations need to control the use of cash within the given financial period. The both types of organizations therefore use budgets. Another key financial objective for both organizations is therefore to keep spending within the budget. साहिल सुन ना, ये हाँ, मतलब पॉइंट लिस्टेड कंपनी वर्सेस एनपीओ है कि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, वो उन्होंने है। बोला था कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इतना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, तो मैंने खाली कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब अलग अलग होना बराबर। चाहिए, तो मैं अलग अलग बोले जा रहा हम्म, था। क्योंकि बाद में देखना इन ऑब्जे लोगों ने सब एकदम हाँ, सेम में लिखा है। objective of value of money is often identified in connection with not for profit organizations। ठीक है, this objective refers to focus on economy, efficiency and effectiveness, BEs। These three terms can be linked to input. Economy refers to securing resources as economical as possible. Process, so resources need to be employed efficiently within the organization, and output, the effective use of the resources in achieving the organization's objectives. Described in these terms, it is clear that listed company also seeks to achieve value for money in its business operations. There is difference in emphasis, however, which merits careful consideration. A listed company can have a profit motive, and so VFM for a listed company can be related to performance measures linked to output, maximizing equity market of the company, and NFP मतलब not for profit organization has service related outputs। Okay, ठीक है, that that are अरे difficult to measure हाँ in बेसिक। quantitative terms, and so it focuses on performance measures linked to input, minimizing the input cost for the given level of output। फिर आता है both listed companies and NFP organizations can use variety of accounting ratios in the context of financial objectives. For example, both types of organizations may use target return on capital employed, or target level of income per employee, or target current ratio. Comparing and contrasting financial objectives of a stock exchange listed company and not-for-profit organization therefore shows that while significant differences can be found, there is a considerable amount of common ground in terms of financial objectives। हमेशा ग्रे इश्यू में एंड करते हैं, ठीक है। तूने ये फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला पैराग्राफ पढ़ा था ना, वो प्राइवेट नहीं, लिस्टेड कंपनी हैज अ प्रॉफिट मोटिव एंड एनपी एंड एफपी इज सर्विस मोटिव। मेरे को 12th स्टैंडर्ड याद आ गया। ना वो एनपी डिफरेंसेस आया भी था अपन अपन को। करते थे। हाँ, हाँ भाई साहब। एक तो बेसिक पॉइंट जो याद रह जाएंगे वो है कैश रिक्वायरमेंट, की दोनों को कैश की जरूरत है कैश क्योंकि तो चाहिए, लिक्विडिटी वगैरह। धंधा है। ठीक है, और सेकंड उसके वाला भी बाद यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ द कैश। बजट, बजट होना चाहिए, ठीक है। ये बजट। NFM मुझे लगता है याद करना पड़ेगा। वैल्यू फॉर मनी, 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब प्रोसेस, और इफेक्टिवनेस मतलब आउटपुट।
आउटपुट को क्या होना चाहिए? एनएफपी सर्विस की तरह देखता है, और ये खाली प्रॉफिट मोटिव। पैसों के बारे में देखता है। हाँ ठीक है, मतलब ये भी आंसर तो ठीक है। नहीं, नहीं मीटिंग पे आ जाओ। पैसे होने चाहिए, पैसे को रखा हुआ होना चाहिए और पैसे को। थियरी हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 2 तूने ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया ना तेरे को? वो थोड़ा नहीं। थोड़ा फाड़ था, थोड़ा वो ये क्वेश्चन थोड़ा फाड़ू है, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर है, और वो चैप्टर सबके लिए वीक है। अम, ये तो यार देख अभी कैसे बताऊं। क्वेश्चन पढ़ पहले तू। प्रैक्टिकल लाइफ में तो देख कैसा कि तेरे बिजनेस वैल्यूएशन हाँ, करना है, जीएसटी की वेबसाइट पे जाओ, टर्नओवर लिखा रहेगा, कैलकुलेट कर लो। ऐसा नहीं है, उतना नहीं रहता है, वो बहुत बड़ा इतना इजी रहता नहीं है। होता है। पढ़ तू, तेरे हिसाब से पढ़ क्वेश्चन नंबर बी पहले, और समझ से वो क्या पूछा है। Calculate and discuss whether using the cash raised by the right issues to buy back bonds is likely to finance acceptable of the shareholders of Bar and Company. Commenting in your answer, believe that the current price and gearing ratios will remain constant. देख वैसे तो मेरे को ये हाँ। काफी सही लगा था क्वेश्चन, मेरे को आधा पार्ट इजीली आ गया था, बाकी का आधा जो था मतलब रेशियोज को फाइंड आउट करना, वो मेरे को पता नहीं था कि इसमें करने का है, तो वो फिर बाद में मैंने हम्म, वो किया। तो हम्म। तेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन है बाकी, मतलब तेरे पास कितना इंफॉर्मेशन अभी के लिए प्रेजेंट है? मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन का है, फिर मेरे ये है नहीं, तूने फाइंड आउट किया ना प्रॉफिट क्वेश्चन एंड नंबर लॉस। 1 में, तो तूने क्या फाइंड आउट किया, तेरे को क्या मिला? मेरे को तू उसके बारे में क्या कर सकता है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। देख मेरे को, मैंने क्या फाइंड आउट किया, मैंने राइट इश्यूज के नंबर फाइंड आउट किए, फिर उसका वैल्यूएशन फाइंड आउट किया, फिर मेरा पर शेयर पे कितना आ रहा है वो फाइंड आउट किया मैंने, और हाँ वैल्यूज फाइंड आउट किया देखो अभी कि क्वेश्चन में पर मैंने क्या शेयर पे पूछा है, कितना। जरा वो पूछना है, जरा खाली है ना, फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल के पहले तक पूछ ले, बॉन्ड्स तक पढ़ ले खाली। Calculate discuss whether the cash raised by the right issue to buy back bonds is likely to finance except finance। मतलब अभी जो राइट इशू के कैलकुलेशन किया है, उससे हमें बॉन्ड का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा ना कि कितना वैल्यू मिलेगा, कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ। नहीं रे, तो एकदम बेसिक है, एकदम सबसे बेसिक है ये चीज। एकदम ठुल्ला इंग्लिश में तेरे को क्या लगता है, सबसे गाउठी इंग्लिश में ये इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अरे वही ना कि राइट इश्यूज के वैल्यू कितने हैं, और उसके सामने लिखेंगे बॉन्ड हमारा एक का कितना है, फिर ऐसे करके कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बॉन्ड का कितना वैल्यूएशन क्रॉस आएगा। मल्टीप्लाई क्या गांड उस मारा है? मैं पूछ रहा हूँ एकदम बेसिक ठुल्ला इंग्लिश में, ये क्या बोल रहा है तू? फिर से एक बार पढ़, बॉन्ड्स तक, सिर्फ बॉन्ड्स तक फिर से एक बार पढ़, एकदम calculate ठुल्ला इंग्लिश the में, discuss वर्ड टू whether वर्ड। using the cash raised by the right issue to buy back bond। जो हमने राइट इशू इशू की है, उससे जो हमें फंड मिला है, उससे हम बॉन्ड बाय बैक कर लेंगे अपने, परफेक्ट। बॉन्ड वाले को परफेक्ट, पैसे वही देके है, ले लेंगे। वही है, खाली उतना ही है वो क्वेश्चन, उन्होंने खाली बाय बैक, रेज वैसे खाली बताया है। अब तूने तो कितने कैलकुलेशन कुछ नहीं पहले, उसका। अबे लौड़े कैलकुलेशन है, अरे भाई कैलकुलेशन तो होता है ना, कैलकुलेशन तो है, बट तू एकदम ठुल्ला इंग्लिश में सोच के अब तुझे हाँ करना समझ क्या गया। है। और तूने फर्स्ट क्वेश्चन हम्म, में देखो आंसर क्या आया था, तुझे खाली वो करना है हम्म। अभी, वो देख। ओके। तो देख, मुझे राइट इशू इशू करने से 4,50,000, मतलब मैंने भी थाउजेंड हटा दिया, 4,50,000 के आसपास कुछ मिला है। तो अभी 4,50,000, मेरे पास बॉन्ड कितने मिलियंस में है ना, वो 1,25,000 के बॉन्ड्स है मेरे एक पास। मिनट हाँ, नहीं ना, तूने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझा है, मतलब तूने कित देख मुझे एक बात बता, हाँ। जब शार्क टैंक में वो लोग पैसा क्या बोलते हैं, रेस करने आते हैं। रेस रेस करने के लिए हाँ, आते हैं, तो उन लोग को एक समझ उसने आज किए 1 करोड़ एक शेयर के लिए, 1% के लिए, या 2% के लिए, तो उसको 2 करोड़ मिलते हैं या हम्म। उसको 1 करोड़ मिलता है?
1 करोड़ 2% के लिए मांगा रहेगा तो उसको 1 करोड़ ही मिलेगा। तो तू अब एकदम ठुल्ला इंग्लिश में वापस की तरफ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ और सोच कि तूने क्या किया है। Bar is an stock exchange listed company that is concerned by its current level of debt finance. It plans to make a right issue to use the fund to rise the payback of its debt. बराबर जो उन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला था। The right issue will be at 20% discount। काउंट में किया मैंने, ओके। अरे वो जाने दे, वो ठुल्ला इंग्लिश अभी और आगे जा। Bar company plans to raise 90 million. Bar company believes that a payoff of some debt will not affect its pricing. Expect to remain the constant. अब मुझे बता कि तेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा हम्म, आया है। अभी तक ना, 1 मिनट का, 90,000। परफेक्ट। अब उन्होंने तेरे को क्या पूछा है, वापस जरा क्वेश्चन में पढ़। कैलकुलेट डिस्कस यूजिंग, वो ही जो पैसे हमारे पास आए उसको हमें बॉन्ड्स को देने हैं ताकि वो हमको बाय बैक कर सके हम उसको। हम बॉन्ड्स ले ले, वो बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर हाँ होल्डर हाँ, जिन्होंने हमें डिबेंचर डेट, इक्विटी, हाँ, डेट, मतलब ताकि उसको हमें पैसे उनको दे लेने सके और हैं। वो जो भी उनको दिया दे सके। बराबर, बराबर है, एकदम परफेक्ट बोला तूने, यही है उसका मीनिंग, उतना ही है। अभी, अभी कैलकुलेशन। तेरे, हाँ अभी कैलकुलेशन करने गए तो तेरे पास ये पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड्स कहाँ पे ओके, आता है मुझे बता। वेल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वेल यार 8% बॉन्ड पर नहीं नहीं लाइक भाई, ट्वेंटी फाइव मैं थाउजेंड एक एक, मैं तेरे को एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुझे, अब ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है फर्स्ट पैराग्राफ में, तू इसकी बत्ती बनाएगा या तू पढ़ेगा। नहीं अरे मैं पूछ रहा हूँ, तू हंस क्यों रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके 8% जा रहा हूँ। बॉन्ड आर करेंटली हाँ। ट्रेडिंग। उसका मार्केट वैल्यू दिया बट हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू लेते हैं। बॉन्ड होल्डर हैव अग्रीड दैट दे विल अलाउ बाय बैक द बॉन्ड और ग्रो कंपनी विल पे टैक्स 30%। ठीक है। तूने क्या बोला पहले, पहले वो बता, नॉमिनल वैल्यू हम कितने वैल्यू पे क्या लेते, तूने हाँ, क्या हम बोला। हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कंसिडर करते हैं ना बॉन्ड्स को। देखो शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता है। हाँ, मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है एवरी डेज। ठीक है, समझ, मेरे पास 10 रुपए के था एक शेयर टाटा का, वो हो गया 12 का। हम्म, मैंने वो चीज मार्केट में बेच दी। मेरे को कितने का ये हुआ, प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। 2 रुपए2 रुपए का। का। मैं अगले दिन जाके, मैं उसी दिन जिस दिन मैंने समझ उसको ये किया, किया सेल, मैं उसी दिन एक और बार परचेज करता हूँ एक शेयर। तो अब वो मेरे को कितने का पड़ेगा। 112 का पड़ेगा। मैंने एक ही शेयर लिया। सॉरी सॉरी, 112 का बोल रहा हूँ, 12 का पड़ेगा। 12 का पड़ेगा, मतलब मैं अगले दिन मैं 12 का ही लूंगा। समझ तेरे पास मैंने एक क्या बोलूं अब मैं यार, हाँ, तो जी एक मिनट ना, मैं समझ, बैट दी मैं तेरे को, बैट, टूटी फूटी बैट दे दी। तूने उस ले बैट पे ले वो। विराट कोहली का साइन लिए, तू आ गया लेके विराट कोहली का। वो पहले बैट थी 100 रुपए की, अब वो हो गई 112.5 रुपए की। तो अब वो बैट तू मेरे को कितने में बेचेगा, 100 में एक सौ बेचेगा बारह कि एक। पॉइंट तो एक सौ नॉमिनल, बारह ऐसा पॉइंट कोई रूल नहीं है कि हम नॉमिनल वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। हम प्रीमियम भी कंसिडर कर सकते हैं, हम जिस वैल्यू पे वो ट्रेड हो रही है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। वो उधर लाइन दी हुई है, करंटली ट्रेडिंग एट तो वन वो पॉइंट वन वो वन वाला टू फाइव वो कौन सा था जिसमें फिजा और मैं दोनों गलत हो गए थे, हम दोनों ने बोला कि नहीं, मार्केट वैल्यू सर ने मतलब 100 पे लेना है। इसलिए वो क्या था? बैठने से पहले सोचने का कि किसके बाजू में बैठने का चाहिए, इसलिए मैं हमेशा सर के बाजू में बैठता हूँ। अरे वो ठीक है भाई, बट क्या था वो? 10% का कुछ आइडिया तो याद है? एक्चुअली फिजा भी स्मार्ट है, फिजा भी स्मार्ट है, ऐसे ही मजाक कर रहा था, अगर वो वीडियो देख रही है तो सॉरी। नो ऑफेंस। नो, नो। नहीं, क्या था वो, क्या था? IFRS का रूल था ना कुछ, याद है देखो। पता नहीं, चल ये ठीक है, मैं छोड़। जेन्युइनली नहीं मार्केट जानता। वैल्यू कंसिडर करना है डेप्थ का, जैसे हम नॉर्मल वे में करते हैं, वो याद तो रखना, ठीक अब है। मुझे बता, अभी हाँ हम्म, परफेक्ट, तो अब मुझे बता
कि तू कितने बॉन्ड्स को रिटेन कर सकता है। कितने बॉन्ड्स को रिडीम कर सकते हैं? 90, 90,000, क्योंकि मेरे पास उतने ही फंड बचे हैं, तो मैं उतने ही पे बैक कर सकता हूँ। नहीं यार, तेरे को शेयर मार्केट के बारे में नहीं, तूने कभी इन्वेस्ट नहीं किया ना शेयर मार्केट में, या तेरे को पता भी नहीं है ना। नहीं, इन्वेस्ट के लिए वो चाहिए होता है। हाँ, पैसा वो ठीक है। अम, नहीं देख भाई, क्योंकि आज मेरा शायद से मूड थोड़ा अलग है तो। नहीं, आज मूड नहीं भाई, तेरा बेसिक्स नहीं है वीक, वो मेरे को पता था। बट मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, देख। समझ, तेरे पास खाली 85 रुपए है, ठीक है। या तेरे हम्म। पास खाली क्या बोलते हैं, 90 रुपीज ही है खाली, हम्म। ठीक है। और तेरे को टाटा का एक शेयर मिल रहा है 12.5 का। हम्म। तो तू टाटा के कितने शेयर्स ले सकता है। 12.5 बोला ना तूने? हाँ, तो 7 या 7.2। 7.5 लेगा, बराबर, ठीक है। समझ, ठीक तू है। विराट कोहली से साइन लेके बैट आ गया 1125 का, ठीक है। और मेरे पास 90,000 रुपए हैं। तो मैं तेरे से कितने विराट कोहली के बैट ले सकता हूँ, ऐसे। छह हजार इट्स ओके, मेरा भी वीक है वो, इट्स ओके, ऐसा कोई वो शर्म आने वाली बात नहीं है, सबको टाइम लगता है। 800। 800 800, मतलब 1.5 वर्ष में बस। मिलियन में कन्वर्ट करूंगा तो। तो वही है, फिर उतना ही है। तो अच्छा, अब उस उतना ही है? 800 को तू नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा 80,000। तो तू 1250 में से 80,000 को निकालेगा, तेरे पास बचे अब बॉन्ड्स खाली 45 के। समझा, बस उतना है। ये लिख लूंगा। बराबर। 45 के बच्चे हैं मेरे पास। तो बराबर है। अब जो तेरा फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा नया, वो तेरा कौन से हम्म वैल्यू पे चार्ज होगा। 45 पे होगा। 45 पे होगा, कौन से इंटरेस्ट के रेट पे वही होगा। वही रिमेनिंग है। रेट कौन सा तू यूज करेगा। 8% ना? परफेक्ट। तो अब ये जो ऊपर उन्होंने बकचोदी की है प्रॉफिट एंड लॉस की, तुझे ऐसा लगता है क्या कि ये 8% ऑफ 125 इज 10। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, मतलब कैलकुलेट कर, मैं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं भाई, कैलकुलेट कर। अरे 125 का बोल रहा है तू ना, तो हाँ, 125 125 का। का 8% कितना होता है। पहले कैलकुलेट कर, फिर देख हाँ, आता है किया नहीं 10, आता। 10 ही है। 10 आता है ना तो क्या बोल रहा है। अब तेरे पास 45 बचा है, तो तेरा इंटरेस्ट अभी कितना आएगा, जो भी आएगा। तो बेसिकली अब वो थ्री क्या पॉइंट बोल रहे हैं। सिक्स कुछ अब आएगा। तेरे आगे का क्वेश्चन पढ़, खाली अब तेरे खाली आगे का क्वेश्चन पढ़। Financially acceptable to the shareholders. Committee also agreed that current price earning ratio will remain constant. हाँ, तो अब उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर वो है कि नहीं। अब मैंने क्या अज्यूम किया कि खाली प्रॉफिट्स बढ़ गए, तो ऑब्वियसली इट इज मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि हर एक चीज बढ़ जाती है फिर। उन्होंने क्या बोला है बराबर। बाद में, ठीक है, तो मैंने भी ये अज्यूम करके गया, एंड यहाँ तक मेरा पूरा सही था। यहाँ तक मेरे को पूरा करेक्ट आया ये सब। उसके बाद ना हम्म। उन्होंने बोला कि ईपीएस कैलकुलेट करो, मैंने ईपीएस कैलकुलेट किया। मेरा ईपीएस रॉन्ग आया, मेरा ईपीएस सॉरी रॉन्ग नहीं आया, मेरा कम आया पहले वाले से, क्योंकि अपन ने राइट इशू ओके। भी किया था। तो अपना ईपीएस आता है कम। हाँ। फिर उन्होंने ओके। बोला है कि अपन ने पी रेशियो को कांस्टेंट रखा है। तो जो मार्केट में शेयर प्राइस है, फिलहाल शेयर मार्केट में जो शेयर प्राइस अभी हम्म चढ़ी हुई है, उस वैल्यू पे इम्पैक्ट आएगा। वो कैसे आएगा, उन्होंने बोला है कि पी रेशियो विल रिमेन सेम। उसके लिए पहले तो पी रेशियो का फॉर्मूला बायट होना चाहिए, वो तो देख लेगा, वो करना तो ठीक पड़ेगा। है। वो तो ठीक है, वो एक बार हो गया फिर तेरे को आ जाएगा। अगर पी रेशियो सेम है, तो फिर तो खाली दोनों। ईपीएस अरे, ठीक है, तो ठीक है। खाली, अरे भाई, 2 मिनट यहाँ पे देख ले भाई, 2 मिनट यहाँ पे देख ले। ठीक है, मैं ठीक मैं पे रिक्वेस्ट करूंगा। द करंट पी रेशियो तेरा इतना आता है, 16.7 टाइम्स। उनने बोला है कि तेरा नेक्स्ट ईयर, मतलब जब तू ये सब न्यू वाली कांडगिरी करेगा, तेरे को 16.7 ही आएगा।
तो और तेरा ईपीएस चेंज हो गया है, तो तेरे को तेरा नया एमपीएस मिल जाएगा विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर। तो तेरे को आया 7.08। पहले तेरे को आ रहा था 7.2। अगर तूने एक्सेल में कैलकुलेट जब किया है वो देख, तेरे को 7.2 आया पीईआर की। हम्म, मैंने खोला तेरे लिए, मैंने खोला 7.2 फिर 7.08 आ गया। फिर जब तू नया, बराबर। फिर इन्होंने क्या बोला है कि शेयर प्राइस इज लेस देन द थियोरेटिकल एक्स शेयर प्राइस, सो इट इज एक्चुअली बैड। हाउएवर it is an unrealistic assumption that PE ratio will not change, because हम्म हम्म once we have bought back the bonds or the debentures, what will happen is that the capital market, बोला शायद इन्होंने, एक मिनट वो मैं पढ़ लेता हूँ, लाइन उधर ही थी। हाँ, द कैपिटल मार्केट हम्म, विल डिटरमाइन आवर शेयर प्राइस, मतलब एमपीएस तेरे को तेरा कैपिटल मार्केट बताएगा, एंड बराबर। नॉट कि तू पी रेशियो को सेम रख के फिर तू शेयर प्राइस निकालेगा, ऐसा। तो बस वो उन्होंने यहाँ पे पूरा बोला हुआ है, तो वो तेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा है। ठीक है। ठीक बस पड़ेगा। वही है।